Okay, so let me tell you how you have to take the benefit of such sessions. I am taking the cases of HPCL only, group task. I am taking HPCL. You even if you get chance for introduction, students are not in position to do the right introduction. And same, conclusion and participation. So what I will do is I'll give chance to each one of you to introduce the topic today. I'll give you a task which already is coming in HPCL. Try to summarize what is the task to others and try to give the direction to the discussion, and that try to do within 1 minute. Why? Because if you extend it beyond 1 minute, students will cut you. They will cut you, you will also lose, he will also lose. Similarly, conclusion has to be within 2 minutes, 2.5 minutes, and conclusion should be done after consensus, after you keep on making the summary. If you don't do that, people will again conclude or cut you. They will lose, you will lose. So this is how you have to do. And body के लिए rules कुछ अलग हैं. Introduction is different rule, conclusion different rule, body is different rule. Introduction I told you, without reading from the case study. They will be giving you pages. Don't read. You can refer, but don't read line to line. Understand it and then tell others. You can refer. I mean, I have page, I can see that. But reading line to line is different from referring the page. As a teacher, I refer my notes and teach you on the board, but I don't read from page to page and tell you what is going on. So this is what you have to do, and then give the direction to the discussion. Let me bring on your screen now the task. This is a corporate social responsibility task of HPCL. I'm sure you have gone through it, but give yourself a couple of minutes, and then I'm coming to each one of you for introduction.
Okay, so now those of you who have already gone through this, case study, one by one, start introducing this to others, and within a minute, you are to tell about the case study and also the direction. Please go ahead now. Good evening, everyone. I take the opportunity to introduce you all to the given situation. We are a part of the SPCL team sent to a village. We have been allocated a required budget, which is 25 lakhs, to develop a village which is socially and economically backward. And we have been given several problems which we have to prioritize. I think the first and most important thing that we can do is know the people. For that, we have to do the survey. And after doing the survey, we can find out how much population is suffering from how many problems. And also, I think the problems which we can see are somehow interconnected, and we can discuss and go to the find the root cause of the problem. And further, we can involve government bodies as well, local government bodies, and also we can in this problem we can also use some HPCL's expertise to solve it better in the better manner. I think this is how we should discuss. Okay, good morning, everyone. Yeah, go ahead. Good morning, everyone. So today's our case studies is HPCL CSR project, in which we are HPCL sending our teams to in a village. We have where some problems are there, and HPCL allows 25 lakhs to us, and the problems are social economic problems, low literacy rate problem, girls married at early age of 12 to 13 years, and man drinks a lot of alcohol. So I think we have to firstly prioritize the problems, and firstly after prioritizing these, we have to discuss each problem one by one and try to find out the solution of that. I think according to my consensus, the low literacy rate is a main problem, and for that लो लिटरेसी रेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग स्कूल्स जो है जो विलेज है वहाँ पर स्कूल्स ओपन कर सकते हैं, और जो वहाँ की महिलाएं उनके लिए स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो नॉर्मल जो HPCL से ही स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ वो ताकि उनकी स्किल्स डेवलप हो जाए, और जो उन्होंने जैसे होता है कि सिलाई मशीन की जो वो रहती है सिलाई मशीन वो सीख सकती हैं, तो इस तरह से हम लोग उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो आई थिंक इस तरह से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे. आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन. Good evening, friends. I would like to initiate our discussion. हमको एक HPCL के लिए CSR प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिली है. उसमें हमें 25 लाख रुपीस को खर्च करना है, और जिसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना है. सबसे पहले मेरे को लगता है कि हमें एक सर्वे करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल नीड क्या है विलेज की, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्लान आगे फॉरवर्ड करेंगे. जैसे कि मुझे आई थिंक सबसे पहले ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये सब इंटर लिंक्ड हैं, लाइक सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड, लो लिटरेसी, गर्ल अर्ली मैरिज, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम. तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें, अगर हम सोशल इकोनॉमिक जो लोग हैं उनके सोशली और इकोनॉमिकली उनको अपलिफ्ट करेंगे, तो उससे जब उनके पास पैसा होगा तो फिर वो लिटरेसी भी उनकी इंक्रीज होगी. जब लिटरेसी इंक्रीज होगी तो मुझे लगता है कि वो गर्ल्स की जो अर्ली मैरिज कर देते हैं, क्योंकि उनको उसके ड्रॉबैक्स और नुकसान नहीं पता है अर्ली मैरिज के, तो अगर लिटरेसी होगी तो अर्ली मैरिज नहीं करेंगे. एंड अगर लिटरेसी होगी, सोशल अवेयरनेस होगी, सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट होगा, तो जो वो अननेसेसरी अल्कोहल में इन्वॉल्व होते हैं उससे भी बच सकते हैं. तो हमें इस तरीके से चीजों को शायद प्रायोरिटाइज करना चाहिए. Yes, so I think that unemployment. Okay, you can go. Okay, thank you. So I think unemployment and illiteracy are the two main causes, and I think we should start by doing a survey, as Arpit said, and learn what are the skills that the villagers are like, where can they monetize, and what are their strength, weaknesses, from where we can find out opportunities on the skills that we can develop in them using the various skill enhancement programs that there are available. And we can also take the help of the HPCL expertise, because there are so many technical persons in HPCL and managerial positions, and they can help us in guiding our project and helping these villagers to, like, find and uplift their
skill levels, and uplifting their skill level will help us to remove the illiteracy. And if they learn something new and find some work, men will also have the less problem of getting drunk. Yeah. Good evening, friends. Thank you for giving me opportunity to start our group task. Our group task is related to CSR project, which is very interesting topic, I think. And in our group task, it is assigned that we have to develop the village economic problems. And for that, the HPCL provides us 25 lakhs, and we have to find out which how we allocate this money into different problems which are mentioned, like social economic backward, low literacy rate, girls marriage 12 to 13 years, and men drink a lot of problems. I think all the four problems are interrelated with each other. To solve this problem, we have to first find out to do a village survey. On the basis of village survey, we can identify how this problems arise into the village, and what is the main root causes for that problem. And after that, we can make some assumption or something which can be solve these problems, and on the basis of that we can move forward. So I think, according to me, low literacy rate is a main problem for others problems, because low literacy rate can lead to unawareness about drinking and early girl marriage problems. So like that, we can solve this all the problems. Thank you. Good evening, friends. I am Sachin Kumar. I am glad to start the class today. Okay. And today's topic given us about is about the CSL team that the HPCL has to go to a village and solve the problems. That is the socioeconomic problem, low literacy rate problem, girls married to 12 to 13 years, and men drinks a lot. And we have to solve these problems. Then first of all, what we have to focus is that these problems are since interlinked, and first we have to go to the village, the panchayat level village, where we can discuss our problems so that we can take their help also. In that way, we can understand the demography as well as the problems and what the characteristic of the village is. That is how the village behaves. We can understand that at that level. Then after that, we can think of making a team, and involving in the team, we can involve the local people of the village, along with the women also, so that we can understand the problems and the locals can respond in their own language to the local people there. And in this way, the interaction could be good. I think in that way, we have to proceed forward and solve all the problems. Thank you. Good evening, all. I am Subham Saurav. I take the opportunity to initiate the discussion. We have been given a situation for our GT in which we have been allocated 25 lakhs for a CSR project in which we have to go to a village which has many socio-economic problems. The problems are like socially economic backward group, low literacy rate, girls marriage at age of 12 to 13 years, and men drink a lot of alcohol. I think all these problems are equally destructive to the society, but we need to prioritize it according to the village condition and find a way to the solution. And we should be discussing on each and every aspects of the problem and how can we tackle with them within the limited amount of resources. I open the house for discussion to all. Good evening, friend. Yeah, bro. Let's start you. You can continue, bro. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Your voice is not audible. Everyone, I am Ashutosh, and I take the opportunity to initiate the discussion. So, hello, ma'am, am I audible? Hello. Voice is breaking. Hello. Is it now clear? Hello. Yes, Yeah, bro. It is clear, bro. Yeah, now it is. So we have allotted a 25 lakh point to go in to visit in a village and
to observe the various socio-economic problems and prioritize these what activities to be done and to make the development sustainable. So in my opinion, the violation of in my opinion, the girls married at an age of 12 to 13 years is a very serious problem to be taken into consideration of, because it is a violation of basic human rights, and also the family assumes their girl child as a liability because they have a very poor economic background, and if we secure the girl's future, then she will herself uplift the not the economic part but the not the economic background but the social responsibility of that of her family. So I think the women who married at an age of 12 to 13 years should be taken into our concern first. Thank you. Hello. Hello. Good evening, everyone. I am Anup Kumar. I take the responsibility of introduction of our group task, which is assigned to us. It is a group task about the HPCL CSR project. We have allocated basically 25 lakhs, और एक गांव है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसको हमें प्रायोरिटाइज करना है, जो 4 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, और उस प्रायोरिटाइजेशन के उसको प्रायोरिटाइज करना है, और फिर बजट का एलोकेशन हमें उस हिसाब से करना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज भी हमें बनानी है अपने एचपीसीएल एक्सपर्टाइज और भी हमारे जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है उसका यूज करके, जिससे कि ये दूर हो सके। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो है सोशली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो गांव में है, लो लिटरेसी रेट, और 12 से 13 साल की जो मैरिज हो रही है गर्ल्स की चाइल्ड में, और साथ में अल्कोहल प्रॉब्लम्स। आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन। थैंक यू। Good evening, friend. My name is Nikhil Bhimani. I thank you to give me opportunity to introduce today's group discussion topic. HPCL has taken a project under its CSR scheme and is allocated 25 lakh rupees for a village. As a part of team, we have to decide how much fund allocated to the different problem of this village. This village has a multiple social economic problem, out of which major problem are listed in our group tasks, like socially economically backward peoples, low literacy rate, girl marriage in the age of the 12 to 13 years, men drink at lot of alcohol. तो हमें कितना फंड किस प्रॉब्लम को अलोकेट करना चाहिए उस पर हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो मैं आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन। Hi team, I'm Shravya. Let us directly get into the task. First, I'll give a brief skeleton, then we'll choose best strategy and then allocate the resources accordingly. First, I wanted to prioritize the things. As Arpit said that all are interconnected, I believe that we can claim to the third section, which is girls married at an age of 12 to 13, that unmarried women from 10 to 18 can be given opportunities like skill development or free education. And similarly, we have another marginalized section, which is as Arpit again mentioned, that it is we can provide sewing machines, handicrafts, and which are suiting to the local resources. And finally, we'll choose the best strategy to allocate these resources, and I open the discussion to the house. Hello, am I audible? Sir, everybody is done. Yeah. Yes, Everybody is done now? Yes, sir. Everybody is introduced, Yes, right? sir. Anybody left? Okay, now let me tell you, we are entering into second part now. In the second part, what are the rules for the second part? You should be very active. You should listen to others. You should speak, and you should listen, make others also enter in the discussion. You should, if you want to give your point, which is opposite to what others are saying, humbly you should put your point. No much rigidity should be there, but I'm not saying that you yield immediately. You give your point, ask them question, what do you think about, and make very session very interactive.
डोंट बिकम आर्गुमेंटेटिव. इट शुड नॉट लुक लाइक कि आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो या यू आर नॉट लिसनिंग टू अदर्स. इट शुड बी लाइक आप उनको बोलने भी दे रहे हो, अपना पॉइंट भी रखे हो और फ्रेंड्स की तरह से, मतलब जैसे एक टीम की तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड इट शुड लुक लाइक प्रोफेशनल. And if you have decided to go for conclusion, then from the very beginning you have to keep on making the consensus. And topic के पास रहो. Keep yourself close to the topic. That is how you have to do. Right? Are the rules clear now? Yes, sir. Yes, sir. Since it is the Yes, sir. last GT for the day, I don't have 11:30 GT, so we can have more time also for the practice. And you are more students also here today in the group. We can have more practice. अच्छे तरीके से बात करो so that आपको practice हो जाए, rehearsal हो जाए. Go for it now. Yes, sir. I need Okay, all friends, of सबसे your पहले opinions so that we can have the first step as survey or not. I think yeah, this is absolutely right. We have सबसे to पहले हम survey क्या first. करेंगे, सबसे पहले हमें जाकर वहाँ पर डिस्कस करना है जो हमारे जो विलेज में होगा, तो वहाँ के जो भी ग्राम सभा होगा, जो भी पंचायत राज होगा, वहाँ पे सबसे पहले जाकर अपने प्रॉब्लम्स को रखेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रखेंगे कि हम इस काम के लिए आए हैं और हमें जो है वहाँ पे डेमोग्राफी को समझना है, वहाँ के कल्चर को समझना है. तो वहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. उस इन्फॉर्मेशन को मिलने के बाद आई थिंक हमें एक टीम बनाने पर विचार करना चाहिए. उस टीम में हमें लोकल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्या कि वो एक लोकल लैंग्वेज वहाँ पर बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे. और साथ ही साथ थिंक जो प्रॉब्लम हमें दिए गए हैं CSR में वो वुमेन रिलेटेड ज्यादा हैं, तो वुमेन्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए सो दैट द इंटरेक्शन कैन बी मोर इफेक्टिव. आई थिंक तो इन दैट We can go for house to house survey so that we can go to the deep root cause of the problems. Yeah. We can have feedback from the people as well. हम आई एम नॉट टोटली एग्री टू यू दैट अगर गांव में अगर 300-400 घर हैं तो हम हर घर पे नहीं जा सकते हैं. तो I think we have ऐसा to हम कर fix सकते हैं कि as a अगर team. ऐसा हम we कर are सकते हैं we are as a team and we can allocate each people some amount of houses, and in that way we Yes. can complete our survey. yes, in that Friends, way. I think Right. actually we have to 4 or 5 prioritize the teams things. of HPCL We have people a and four then problem. divide the work. I think we have a 4 problems. So firstly, we have to prioritize the things कि हमें पहले किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, and after that we have to discuस all the points one by one and solution of all the things. तो पहले Since- प्रायोरिटीज कर लेते हैं. Since मुझे जो लग रहा है कि हाँ, मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम आप- वो लो लिटरेसी रेट का है, और लो लिटरेसी रेट एंड सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अगर हम इन 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं तो बाकी जो 2 प्रॉब्लम्स है गर्ल्स अंडर एज मैरिज का और जो ड्रिंकिंग का, वो दोनों सॉल्व हो सकता है. तो आई थिंक हमें दोनों फोकस करना चाहिए. यस, आई थिंक सबसे पहले हमें जो सोशल हेलो अपलिफ्टमेंट एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना आई थिंक पड़ेगा. हेलो क्यों कई बार ऐसा होता है क्योंकि पर्सन के आई पास थिंक हमें लो लिटरेसी रेट वाले प्रॉब्लम को पहले लेना चाहिए, क्योंकि अगर उस प्रॉब्लम को हम ध्यान से स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे, तो बाकी के 3 प्रॉब्लम है वो इसके सबसेट के पार्ट के रूप में दिख रहेगा. अगर हम लो लिटरेसी रेट वाले प्रॉब्लम को सोल्व करने में ज्यादा फंड यूज करेंगे तो बाकी के 3 प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, क्योंकि लो लिटरेसी रेट इज अ Guys, think मुझे education I- does I not agree. need cap. आई थिंक मुझे लगता है सबसे पहले हमें आई थिंक जो हमारा सर्वे पार्ट है, हमें पहले वहां पे लोकल आंगनबाड़ी केंद्र जाना चाहिए और आशा वर्कर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, जिससे कि हमको जो कि वहाँ की लोकल होंगी और जिससे कि हमको काफी अच्छा डाटा मिलेगा. और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गर्ल्स चाइल्ड मैरिज का, क्योंकि हम जब For that we need to spread I awareness, have and little awareness के लिए disagreement आपको with you. लिटरेसी चाहिए होगी ना, मतलब अगर बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है बिल्कुल, प्रॉब्लम क्या है मैं उसका. मैं भाई तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ. मेरे हिसाब से सबसे जो पहला पॉइंट बनता है वो लिटरेसी के पर बनता है, एजुकेशन को इम्प्रूव Because करना, हाँ, उसके बाद सोशली बैकवर्ड का, और उसके बाद फिर आप मैरिज पे जाइए, एंड लास्ट में आप लिस्ट प्रायोरिटाइज आप कीजिए अल्कोहल वाले प्रॉब्लम को. I think जब लिटरेसी आई रहेगी एग्री विद तो यू, बट डिफरेंसेस भी मेरे- कम हो जाएंगे. मुझे लगता है मेरे हिसाब से अगर आप जो सबसे पहले लिटरेसी लिटरेसी रेट है प्रोवाइड करेंगे उसका एक बहुत बड़ा कारण इकोनॉमिक डिप्रीवमेंट भी होता है, क्योंकि पर्सन के पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस नहीं पता होती लिटरेसी की, उसके पास एक सोर्स नहीं होता है. मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ भाई, लेकिन ये हमें लेकिन- इसके स्ट्रेटेजीज बनानी है ताकि इसको इसको ठीक किया जाए. लेकिन yes, लो for that लिटरेसी we रेट have को budget इम्प्रूव ना. करना है तो हमें But इसके लिए हमें टाइम हाँ. चाहिए. एक टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है. हम ऐसे 1 या 2 या 3-4 महीने में लो लिटरेसी रेट को नहीं सुधार सकते हैं. तो मेरे ख्याल से हमें इन पैरेलल जाना चाहिए कि लो लिटरेसी रेट को सुधारना चाहिए और साथ ही साथ जो
सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सब इकोनॉमिक कैसे इनहांस हो सकती है, इन पैरेलल वे में जाना चाहिए आई थिंक। हमें सबसे पहले सोशल अपलिफ्टमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए सोचना पड़े, क्योंकि जब एक बार इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा तो उसके बाद लिटरेसी को वो इजिली समझ पाएंगे। और लिटरेसी के लिए जो हम कोई भी स्टेप लेते हैं, सपोज करिए हम उनकी लर्निंग के लिए कोई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो वो उनको इजिली समझ में आएगा, उनको लिटरेसी उनकी बढ़ेगी। जब लिटरेसी बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि जो गर्ल अर्ली मैरिज वो कर रहे हैं, उससे भी उनके जो अर्ली मैरिज के जो लॉसेस हैं, जो प्रॉब्लम गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है, वो उनको समझ में आएगी। और जब वो उनके पास पैसा होगा, अर्निंग होगी, अवेयरनेस होगी, लिटरेसी होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग अल्कोहल जैसी प्रॉब्लम में इजिली पढ़ पाएंगे। लिटरेसी मतलब स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है इसी राइट है कि अगर आप but if I would like to bring one fact होगी कि जो मैरिज अर्ली मैरिज से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो अल्कोहल से हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वो आपकी हट जाएगी। अगर आप अल्कोहल अर्ली मैरिज को हटा पाओगे तो उसके बाद आपका जो बैकवर्डनेस आता है वो आपका एक तरीके से और भी हटता चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले लिटरेसी मैं एक फैक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पे। आज राजस्थान में 74% है लिटरेसी रेट, बट स्टिल they are practicing the child marriage. You can see in Haryana they have 78% literacy rate, but they are still practicing child marriage. So in today's generation, आज के जमाने में की अगर बात करें, अगर 12-13 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी हो रही है, it is a very huge बहुत बुरा है हमारे देश के लिए। सबसे अवेयरनेस प्रोग्राम जो होता है बहुत सारा वो चलाने की जरूरत है कि चाइल्ड मैरिज अगर 18 साल से पहले हम अगर गर्ल्स के मैरिज करते हैं तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन रेस्पेक्ट ऑफ गर्ल्स के जो हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और उसका जो इकोनॉमिक, उसका जो सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उसका एक कंपेयर कर हम उसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, हम सोच रहे हैं उसका जो माइंडसेट है वहाँ उनके जो पेरेंट्स का, वो चेंज कर पाएंगे। तो मुझे सबसे पहले लगता है एक अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे गाँव में चलाने की जरूरत है सबसे पहले। ये आप जो बोल रहे अवेयरनेस प्रोग्राम, वो तो तभी आप कर सकते हो इफेक्टिवली कि अगर आप लोगों को लिटरेट किए हो, अगर आप लोगों को लिटरेट कर पाओगे तभी उसको अवेयरनेस आई थिंक हम पहले गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को सिक्योर करते हैं तो और उसके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, तो हम हर फैमिली के गांव के एक मेंबर के को एम्पावर कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए आप लोग। और जो सोशल बैकवर्डनेस है, गवर्नमेंट स्कूल को अच्छी स्कीम के लिए फंड करे, प्लस हम जो वो पीपल है जिनकी एज 30+ हो चुकी है उनके लिए हमें नाइट स्कूल ओपन करे ताकि वो उनकी लिटरेसी बढ़े, प्लस उन नाइट स्कूल के दौरान हम उनके गर्ल्स मैरिज के बारे में अवेयर भी करें, तो हमारी एक साथ दो प्रॉब्लम सॉल्व हो कर सकती है। और बच्चों को लिटरेसी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू स्किल्स, और स्किल्स होगी तो हमारे पास इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी नहीं होगा। फिर अगर जॉब हो जाएगी वो लिटरेसी चाहिए उसके लिए। और आप अगर देखेंगे कि लोग गर्ल्स की अर्ली मैरिज क्यों करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि गर्ल्स की अर्ली मैरिज इसलिए की जाती है क्योंकि लोग उनको एक तरीके से अपने वेल्थ का कारण नहीं समझते या फिर उनको एक बोझ समझते हैं। तो वो एक जो माइंड सेटअप है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद आप फ्यूचर में आप प्रोग्रेस कर सकते हो। ओके, तो फिर मेरे पास तो वी कैन एग्री दैट फर्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी। We should conclude which points should come at first. Like we have discussed that low literacy rate should be at the first, and then socially economic backward, and then girls marriage and girls marriage at third, and men drink a lot of alcohol at the fourth. And you I all think agree that to this? Yes. How can we the survey asking people for their problems? We should do a SWOT analysis of the village, like strength, weakness, opportunities, and threats, and we should ask the villagers and then conclude in our team about what are the strength of the villager and or how can they be self-employed and what skills we can. मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कलेक्टिवली कि हम सबसे पहले लिटरेसी पे ध्यान देंगे, उसके बाद सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, एंड देन लिटरेसी के साथ साथ पैरेलल में ही हम गर्ल
गर्ल अर्ली मैरिज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, देन साथ में हम उसके बाद फिर अल्कोहल प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। Yes, I totally agree to you. I agree that we should discuss on every aspect of problem and how to find out the solution to this. Now I think we I should think move we forward. should तो not लिटरेसी stay तो हम लोग here on डिस्कस this करते and हैं, we should हम move लोग forward in the स्टार्ट करते हैं discussion. डिस्कशन पहले से हम लोग लिटरेसी रेट का क्या literacy सॉल्यूशन हो सकता है। लिटरेसी literacy rate का हम solution पहले है ये कर सकते हैं कि किसी एनजीओ का सपोर्ट ले लें, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो जैसे कि गूगल हो, बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, जो लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन लर्निंग काफी सस्ती भी पड़ती है और अफोर्डेबल भी है, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम लगती है। तो उसके लिए हम एक तैयारी कर सकते हैं। इसमें सबसे आसान तरीका I think we can have NGOs participate in such it. costly platforms. और इसमें we can have आसान और NGOs. अच्छा तरीका ये I होता think है कि I think in my opinion निर्भर नहीं कर सकते, I think in my opinion गवर्नमेंट का बहुत सारा एजुकेशन प्रोग्राम इन पैरेलल चल रहा होता है। हाँ, मैं सोचता हूँ उसके इम्प्लीमेंटेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, वो ज्यादा रहता है। And also education does not need much of capital investment, it needs human resources. तो ज्यादा बेटर होगा। we can ensure we can also ensure the we can also ensure the midday meals in the schools of the village and the infrastructure of the schools of the village. वो ऑलरेडी ये हम लोग कर सकते हैं ना कि not the schemes cover कम हो रहा है स्कूलों में, अगर जो अटेंडेंस कम हो रहा है स्कूलों में, अगर उसको मैनेज करें, लोग अवेयर करें कि लोग अपने बच्चों का स्कूल भेजें, क्योंकि अटेंडेंस बहुत कम होता है गांव में बच्चों का, तो अगर उस पर ज्यादा हम फोकस करें कि अटेंडेंस उसको बढ़ाएं, भेजने के लिए मोटिवेशन क्या होगा? और हाँ, मोटिवेशन to fight all the other three causes, we can have मेले literacy. लगते हैं We गाँव can में, tell आप them उसमें ना. वो तरीके से लगाइए और उसमें लोगों को इनवाइट कीजिए तब, क्योंकि लोग पहली बात तो मेला सुन के या फिर कोई भी फंक्शन सुन के इनवाइट होकर इंटरेस्टिक होते हैं, तो वो वहां पर आएंगे। फिर आप उनको एक दो तरीकों से समझाइए, एक खेल के माध्यम से, जैसे कि एक मोहल्ले में गेम्स होते हैं उनके माध्यम से, और इस तरीके से लोगों को अगर इन्वॉल्व करेंगे तब वो उस तरीके से फोकस करेंगे। अगर आप उनको सीधा जाके फोकस करने की कोशिश करोगे कि एजुकेशन ले लो, तो शायद वो ना करें। I think the school infrastructure, basic infrastructure, we have to invest on that because it remains as it is. We can't invest by we have only 25 lakhs. We can't invest. No, a village has only 2 to 3 schools. We can have open classrooms, right? We can afford it. We can afford it. We can keep open classrooms. मुझे एक मिनट, मेरे पास 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि हम HPCL के नाम पे कुछ स्कॉलरशिप दे सकते हैं, जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उनको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, जिससे एक मोटिवेशन मिलेगा। दूसरी बात, आसपास के गांव के वैसे लोग जो ऑलरेडी पढ़ लिख के बहुत अच्छा कुछ कर चुके हैं, उनका अगर हम एग्जाम्पल सेट कर दें सबके सामने, तो उससे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो ये और स्कॉलरशिप का मोटिवेशन है ही, तो इस तरह से मोटिवेशन करके स्किल लर्निंग बेस पे हमको जो अच्छा परफॉर्मेंस करे, अगर हम उसे अवार्ड देते जाए कैश प्राइज में अथवा किसी और रूप में, तो वो ज्यादा से ज्यादा सीखने की ट्राई करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, उस गांव के जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल होंगे उन्हें आगे लाएं और ये एजुकेशन के बारे में उनके फायदे वो लोग अगर बताएंगे तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। हाँ, हर गांव में जैसे कि पंचायत होती है, एक सभा होती है, तो उन सभाओं को लेके हम लोग उनके बारे में अवेयरनेस कर सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, जो वहाँ के जो लोकल बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर इस रूट क्यों नहीं जा रहे हैं तो हम शायद उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो नहीं जाने का कारण ये हो सकता है, एक नहीं देने का कारण ये हो सकता है कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकता है कि स्कूल अगर दूर हो तो बच्चे को नहीं भेज रहे होंगे, तो हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ला सकते हैं। दूसरा है कि वो मोटिवेट नहीं होंगे तो वो नहीं जा सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज बता रहे होंगे तो लोग अवेयर नहीं होंगे। अगर हम 3 प्रॉब्लम्स को काउंटर कर लें, अगर हम अवेयर करें चीजों के प्रति और अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को बढ़ा दें और उनको अगर थोड़ा सा मोटिवेट करें इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, तो शायद हम लोग इस प्रॉब्लम को काउंटर कर सकते हैं। उन्हें स्कूल तक ले जा सकते हैं। I think उनको अट्रैक्ट करने के लिए we all have agreed कि लिटरेसी हमारी रूट कॉज है। हम उनको ये समझा सकते हैं ना कि अगर आपको बाकी 3 प्रॉब्लम्स से फाइट करना है तो लिटरेसी चाहिए ही। ये अवेयरनेस बना सकते हैं ताकि वो मोटिवेट हो सके और मतलब पढ़ाई के लिए
आ सके, और ओपन क्लासरूम में आएंगे तो सबके लिए इजी रहेगा। और बाकी जो और हमें फार्मर्स वगैरह मोटिवेशन के साथ उन्हें हैं, अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट उस चीज से हो गया। हमारा जो आइडिया है उन्हें स्किल सिखाना अथवा मोटिवेशन करना, अवेयरनेस करना, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। तो मेरी एक स्ट्रेटेजी है फ्रेंड, मैं आपको बता दूंगा, अगर डेवलपमेंट के लिए हमें जो बेसिक फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल में, तो हमें उन Yes, फैसिलिटी yes, को friend. बढ़ाने के लिए फंड देना Exactly. चाहिए। I agree with you, friend. Yes. लिटरेसी people from HPCL, right? के लिए देखना पड़ेगा। We can also set an example of ourselves and show them that they could be here in place of ours. And we can also take help from HPCL technical person rather than BYJU'S or any other, because HPCL has very good technical people, and we can help the villagers for teaching or any other help we can give them. I think for the people who are old That enough, will be cost effective too. And that would be I cost think effective too. the youth of like 30 plus age, they don't need literacy, but they need skills, they need jobs. So I think we can have should go for point one, We can help them where बात करनी चाहिए। अब ये पॉइंट हो चुका है। ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हैं। अगर हम सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि अमूल वर्क करता है, तो उसी प्रकार का अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव में चलाए तो वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ जैसे मनरेगा है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट का स्कीम है, अगर उसके साथ अपने स्कीम को लॉन्च अटैच कर देते हैं, जैसे कि हम अगर बायोगैस प्लांट लगा लें, इस HPCL इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट बायोगैस प्लांट, अगर हम मनरेगा में ही अगर बायोगैस प्लांट को अटैच कर लें तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का हेल्प आ जाएगा। और उससे क्या है कि बायोगैस प्लांट पे लोगों के पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल है, गांव में लोगों के पास, लोग गाय पालते हैं, उनके पास एज ए वेजिटेबल्स होते हैं। इस प्रकार वो घर पर ही एक कंप्रेस बायोगैस प्लांट को लगा सकते हैं, और उससे कुछ वो साथ ही साथ अर्निंग भी कर पाएंगे और उनका एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम चला सकते हैं। कि हम उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, ताकि वो जैसे गांव में जनरली लोग पशु पालन करते हैं, गाय भैंस बकरी का दूध रहता है, तो अगर वो सपोज करिए अगर मिल्क को सेल करते हैं तो 1 लीटर का उनको 60 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मिलता है। बट अगर वो मिल्क से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि लस्सी बनाई या रबड़ी बनाई या कोई स्वीट बनाई, तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम मिल्क से कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो इससे हम 2 चीजों को टैकल कर सकते हैं। पहला कि जो सैनिटेशन है, जो कचरा वो इधर उधर फेंकते हैं, हाइजीन वहां से गांव का विलेज का मेंटेन होगा। दूसरा, जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट से उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होगा। हाँ, पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्ट्स आपकी about बात कर fresh उनके लिए organic उनको vegetables. फिर Like nowadays, people in the cities want fresh and organic vegetables, so we can help them to grow the vegetables in their agriculture fields in the village, and then help them to sell these in the nearby cities. बट इफ अगर वो कोई प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करके, सपोज करिए अगर मिल्क कोई स्वीट बना रहा है, तो स्वीट आपको पता है कि 300 kgs 250 रुपीज पर केजी के हिसाब से जाता है। तो मुझे लगता है इससे इजिली और फास्ट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा अगर हम कोई इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे, जिससे कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट अपने उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्स उनका अपना कोई देसी प्रोडक्ट we can create self-help group in the villages, so that छोटे स्केल में भी अगर कोई काम स्टार्ट फिर we can divide the डेवलपमेंट पर भी इंप्रूव करना चाहिए, किस तरीके से हम स्किल डेवलप कर सके। वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट है, और गवर्नमेंट की जितना बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चल रही है उसमें टाई अप कर लो, और इन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करवाने के लिए अपने लोग भी रख सकते हैं, और जो पूरा सपोर्ट सिस्टम रखते हैं, उनको फाइनेंस करके भी हम हेल्प कर सकते हैं। और उनके स्टार्टअप्स वगैरह को डेवलपमेंट सेंटर ओपन कर दे, और उनमें ये जो गवर्नमेंट स्कीम है मनरेगा जैसे, उन्हें उनके साथ जोड़ दे स्किल डेवलपमेंट के साथ, प्लस हम ऐसी स्किल सिखाए जो उनके लिए फायदेमंद हो। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड बायोगैस प्लांट, मेक बायोगैस प्लांट, डेयरी प्रोडक्ट को अपने पॉइंट रखने को दो, कन्वर्ट किया जाए। No. I think we are heading towards wrong direction. I think we should discuss the second point, right? So HPCL has sent us. HPCL has sent organization has sent us to perform our duty, not to rely on the not NGOs to rely on the other duty. Yeah, NGOs and government organization. We are not attached to them. So it is a part of CSR. So we have to make sure how to efficiently use that 25 lakhs
we have to spend that okay, They are how also to about the same subject, Yeah. so we can टाइप continue करते both. हो भाई तो Also- तुम स्पेंड करते हो लेकिन अगर भाई उसी जब तुम लोगों प्रोग्राम को को टाई अप करते हो गवर्नमेंट के प्रोग्राम के साथ Also, अटैच कर यहाँ दिया पर जाए आप क्या तो सोच रहे हो हमारे कि लिए आप इम्प्रूव उनके हो पास जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट हमें होगा या एक कोई हमें प्रोडक्ट एक्सपर्टीज होगा? मिल जाएगी जो One पहले by से one. वहाँ पे no काम no कर वो रहा है। प्रोडक्ट भी if you उनके पास if you होने if के you लिए गाय या notice फिर जो if you चीजें notice होनी all the चाहिए CSR projects of HPCL are all the CS like Unnati project Unnati like project Dil Without Bill are operated by हमें HPCL itself. एक्सपर्ट मिल जाएगी। मान लिया we are पहले से जो काम कर रहा है, अगर पहले वहां पे गवर्नमेंट पे जो है तो कोई बायोगैस प्लांट पे काम कर रहा है, अगर उसके साथ अटैच करके कोई मनरेगा में काम कर रहा है, अगर उससे बायोगैस प्लांट को अटैच कर देंगे तो हमारे पास एक लेबर का तो there are various levels of इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे, corruption, वो हेल्प you कर know, देंगे। there are various levels of corruption, you know, I think we we are not deviating aware from the of. topic. I think we are I dividing think we are from the deviating topic. the topic And right now. क्योंकि We हम have not दो decided पॉइंट को between the डिवाइड second and कर third चुके हैं priority. लिटरेसी को। एचपीसीएल क्या कर सकता है कि सर एचपीसीएल जो है वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं, जैसे कि मान लो हम लोग काम कर सकते हैं, जो हमें 25 लाख रुपए मिले हैं उससे हम लोग जो सिलाई मशीन रहती हैं, जो गांव की औरतें हैं, हम वो सिलाई हाँ। मशीन बांट के उनके स्किल का डेवलपमेंट करके वो जो कपड़ा बना रहे हैं उस कपड़े का हम लोग अपने एचपीसीएल में एग्जीक्यूशन करके वो कपड़ा वहां बेच सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्री बना के वो लोग वहां पर अपना स्किल डेवलपमेंट करें और वो जो बनाते हैं उसका हम अपने एचपीसीएल में सेल कर सकते हैं, मेला लगा सकते हैं और जहाँ पर वो पैसे भी कमाएंगे और स्किल डेवलपमेंट Yes, yes, I agree with you. I agree with you. Local skill development is the प्रोडक्ट भी तो बनाए हम जाते उसमें हैं एक जैसे कोर्स लोकली स्विमिंग का भी पॉलिसी। रख सकते हैं। जैसे ही हम एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन करते हैं तो उसमें एक कोर्स हम स्विमिंग का भी रख सकते हैं कि गांव के लेडीज वहां आए, हम उन्हें मशीनरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, वो वर्क करेंगी और कुछ प्रोडक्ट हमें बना के देगी, जैसे कि हम एचपीसीएल के लिए क्लॉथ बना सकते हैं, हमारे यूनिफॉर्म बना सकते हैं, जो अलग अलग स्टाफ के लिए यूज सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं और वापस वही रुपीस हम उनके नेक्स्ट फ्यूचर के लिए फंड कर सकते हैं। ऐसे इसके अलावा हम I think we should go for third point. क्या कर सकते हैं? Yes, I think we Yeah. should go for girl marriage. थर्ड पॉइंट में हमें जाना चाहिए। we should move ahead. Okay, we should now go next point. ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यस अब हमने सोचना सबसे चाहिए पहले कि अब 2 पॉइंट्स हमने प्रायोरिटाइज कर लिया है, तो अब हम आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गर्ल अर्ली मैरिज Early पॉइंट। marriage. तो यस श्रव्या, you want to make some points? Then go ahead. Let Shravya make points, sir. Yes, yes. तो Yes, First, we need to understand why girls. Yes, yes. Yeah, continue. श्रव्या को बोलने दो guys. Yes, Yes, please. yes, Abhay. So first, we need to understand why women are getting married at the early ages. If we can find out the reasons, then we can work upon those points. So I think we need to promote the girls to educate further. अगर हम लोग उन्हें पढ़ा सकते हैं प्रॉपरली कि अगर अनमैरिड वुमेन लाइक 10 to 18 एज ग्रुप के हैं कि हम लोग आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर में भेजेंगे और वहां से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो शादी कराने से बेहतर वो लोग सोचेंगे कि चलो ये पैसे कमा सकती है। सो इफ वी आर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, लेकिन ये तो चाइल्ड लेबर का काम हो गया ना। No, Skill actually, development. No, organizations are that is employing- नहीं तो that is No, Preparing them for स्किल future. सिखा रहे हो आप, उसको स्किल सिखा रहे हो। जैसे आप एक बच्चों को आप स्किल skill सिखाते कर हो, रहे वो हैं। इस तरीके से स्किल कर रहे हैं, आप स्किल कर रहे हैं, आप I उनको वो काम नहीं computer करवा रहे skill हो। क्यों ना कंप्यूटर और सेंटर्स अग- में क्यों ना अप्रेंटिसशिप, अब अभी कोई Exactly. अगर हमारे हाँ। ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप करता है तो व्हाट ही डज कि फाइल्स में कुछ एंटर कर दे, एक्सेल डाटा मैनेज कर ले। तो अगर हम वो ऐसे छोटे छोटे स्किल्स सिखाएंगे तो वी कैन प्रमोट हर टू वर्क कल्चर। Yes, yes, yes. I Exactly. In that completely way, agree with yes, my completely we are colleague's point. liability. I agree कि with you. हम गर्ल्स के लिए For the people. आप स्किलिंग के लिए कोई अगर सॉफ्टवेयर की नॉलेज या उनको स्टिचिंग सिखा सकते हैं, तो ये हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि अगर स्टिचिंग सीखती हैं तो उससे सोशल अपलिफ्टमेंट भी होगा, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होगा। देन साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि गर्ल्स को जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करें कि अगर आप अर्ली मैरिज करते हो तो उससे क्या प्रॉब्लम है। लाइक जैसे कि कई बार अगर गर्ल्स की अर्ली मैरिज हो जाती है, अगर वो कंसीव कर लेती हैं तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको उनके जो चाइल्ड होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो भी वीक होता है और गर्ल को इटसेल्फ रिस्क रहता है। तो इसके Or tell them about इसके लिए- biological और issues, इसके legal issues सारे- as well. अगर हम ये girls सारे को- प्रॉब्लम्स ये को हम इसके एक साथ ये नुक्कड़ भी कर नाटक सकते के हैं। माध्यम से दिखा सकते हैं और Yes. इससे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। Yes, Yeah, एक- but एक- awareness, we एक should not awareness try प्रोग्राम to चला सकते हैं। साथ ही साथ क्या fear करें the girls को parents अगर into not doing sports this, की but we तरफ should mold करें। like make them Yes, sir. aware about what is right and what is wrong, and by educating them, we can then do that and make them feel that the girl child is not a liability and they should not
marry them at such an early age, and they should be educated, and that will solve their problem. Apart from I think along with education and skill education, development, is there anything else we can do? motivate towards the sports also. और गर्ल्स को हम देख सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे हरियाणा सेक्टर में देखते हैं गर्ल्स को मोटिवेट करते हैं स्पोर्ट्स की तरफ भी, देन दे कैन आल्सो कन्विंस, वी कैन कन्विंस देयर पेरेंट्स आल्सो। अगर स्पोर्ट्स में उनके बहुत अभी आगे जाने दो, बहुत सारा स्कोप है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो ये इस तरीके से हम समझा सकते हैं। और साथ ही हमको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जो प्रधानमंत्री हुए या राष्ट्रपति जो है वो उस लेवल तक हमारी बच्चियां जा सकती है अगर उन्हें प्रॉपर्ली गाइड करें। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ने बोला है so we can encourage them that there are more opportunities for girls in sports such as cricket, which is a very high paying job, very high paying field. So we can also encourage parents to let them do what their child want and also encourage them towards the sports field. और मैं आप तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। एक पॉइंट और है कि अगर हम गांव में ही छोटे मोटे स्पोर्ट्स का कंपटीशन वगैरह हम करवाएं लड़कियों के लिए खासकर, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट करेगा लड़कियों के लिए। ये एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। Very good point, very good point. I think now we should move forward for our last point. I want to add one more point, guys. I want to add Yes, one more point. Yaduvanshi. I have a point regarding the girls 12 to 13 years old. Sachin, please speak. Yes. What I want to say that कि अगर आपको गर्ल्स की जो मैरिज एज है अगर वो कम करनी है, वो बढ़ानी है, तो सबसे पहले हमें उनके पेरेंट्स को पढ़ाना मतलब समझाना पड़ेगा। वो हमें समझा सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज हम एक चीज और ये कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे फंड है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर वो बच्चों को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के या स्कूल में भेजती हैं, तो हम उनको थोड़ा जैसे मान लो 500 रुपए 1000 रुपए वो हम हर महीने प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक तरह से वो इकोनॉमिकल सपोर्ट भी करेगा और वो एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ चलो हमें रुपए मिल रहा है, तो वो उनको एक तरह से एजुकेशन में वो फर्क करेगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, 18 साल तक पढ़ाएंगे। One more thing, I would like to add one point. I would like to add one point. जैसे कि हम एक वुमेन, जैसे कि हम एक गवर्नमेंट की स्कीम यूज कर सकते हैं, कन्या विद्याधन योजना, जिसमें कि स्टार्टिंग में 50% मनी हम लोग डालेंगे, 50% मनी उनके पेरेंट्स डालेंगे, लड़की वो उस गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स, और वो हो जाए, वो जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वो सेविंग्स बढ़ता जाएगा। और वो जब 18, ये तो गवर्नमेंट कर रही है ना, ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है, तो लेकिन हम लोग हेल्प कर रहे हैं ना, हम लोग हेल्प कर रहे हैं ना, 50% हम लोग डाल रहे हैं, 50% उनके पेरेंट्स। तो वो आगे चल के बतानी है। अगर 1 लाख भी डालते हैं तो वो 18 साल में 22 लाख बन के निकलता है। Friends, I think we have not allocated the budget. We We have discussed the budgeting. एक मिनट I think before allocating the budget, we have to solve the problem of the men drinking a lot. हाँ, पहले अल्कोहल का we can प्रॉब्लम को discuss सॉल्व करते हैं, फिर उसको प्रायोरिटाइज करके सबका परसेंटेज वाइज हम yes, allocate yes. कर देंगे कि किसको Correct, कितना बजट correct. मिलेगा। कितना परसेंटेज एलोकेट करना चाहिए, सही है। ड्रिंकिंग So प्रॉब्लम alcohol, I think alcohol major cause is हमें ये unemployment. देखना पड़ेगा कि वो जो Yeah. If पर्सन है men वो start to work, then the problem क्यों would कर रहा not है? be there. उसके पास गलत हरकतों की वजह से इन्वॉल्व है ड्रिंक में या इकोनॉमिकली वीक है। conclusion. ओके, तो मेरे हिसाब से अल्कोहल को मिटिगेट करने के लिए जो कुछ पॉइंट्स है, पहला बात है कि आप रिहेब सेंटर्स को साथ टाई अप कर लीजिए या फिर उसको अपने पास लेकर आइए। काउंसलिंग का भी आप कर सकते हैं और साथ में लोगों को काउंसलिंग दीजिए ताकि वो लोग स्ट्रेस फ्री बिहेव करें। और साथ में जो स्किल डेवलपमेंट और बाकी हम लोग जो डिस्कस किए वो भी एक कारण बनेगी जिससे कि लोगों का अल्कोहल प्रॉब्लम रिड्यूस हो सके। We should not divide the budget. कई बार क्या होता है वो एडिक्शन में पड़ तो जाते हैं, बट वो एक्चुअली में एडिक्शन में पड़ जाते हैं लेकिन छोड़ना भी जाता है, तो उनको पता नहीं होता है कि हम एडिक्शन को छोड़ें कैसे। तो उसके लिए उसके लिए रिहैब के लिए काउंसलिंग ये भी करना पड़ेगा कि जो एडिक्टेड पर्सन है उसके फैमिली वालों को भी बताएं, विलेज को भी अवेयर करें कि अगर कोई पर्सन इनिशियल फेज में है अल्कोहल ड्रिंकिंग हैबिट के, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं। अब हम लोग प्रायोरिटाइज करके मनी को prioritization is done, but budget is not allocated. बजट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट नाउ। एक मिनट, प्रायोरिटाइजेशन पे ये सबको श्योर हो जाओ ना कि हम लोग कौन कौन से पे कर रहे हैं। पहले पे है लो लिटरेसी, right? हाँ, सेकंड सोशल इकोनॉमिक Second is socio-economic. Yes. थर्ड इज And अर्ली the- चाइल्ड मैरिज, Early child marriage. Early marriage and fourth one is alcohol. एंड फोर्थ इज रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, है ना? Alcohol, yes.
The first point being the major contribution it will 50% have. बजट हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे देना चाहिए, क्या कि वहाँ नहीं, एक बहुत ही मेरे वाइड हिसाब एरिया से- है। नहीं, वहाँ मेरे पे हिसाब बहुत से divide, wide according area to है priorities. cover करने के I think लिए। मुझे लगता है कि हमें I- 30% बजट अपना लिटरेसी में देना चाहिए, हाँ, and और 40% Literacy 40% सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड Literacy देना rate चाहिए। के लिए human According resources to me, लगता है, not guys, capital. According to me, I I think think we can go 40% for हम लोग को 40 and लिटरेसी में 20 देना each. चाहिए, फिर Social 30% बैकवर्ड में करना चाहिए और 20% हमको बाकी 2 प्रोजेक्ट्स में देना चाहिए। अच्छा हाँ, गाइस, जैसे हमें पता है कि इसमें दोनों confirm चीज करते हैं। इंटररिलेटेड है, सोशल इकोनॉमिक हम- और लिटरेसी रेट इंटररिलेटेड है, तो हम दोनों को 50% देते हैं और बाकी 2 बचे हुए दोनों 20 और 25%। I think we can have 40 and I think we 20 should rest. increase the budget for the I think we can have Yes, 40% and girls' marriage to 20% each rest. 30% and or I think 35% and I think 15% to social the awareness reduction गर्ल्स of मैरिज alcohol. तो 12 and के लिए हमें 13 years ज्यादा- old है, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें Yes. अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। वो because मेजर major में सॉल्व जो हो जाएगा, first अगर है, उसको एजुकेट major करेंगे तो मेजर सॉल्व हो चाहिए। जाएगा। तो एक मुझे मिनट लगता है कि भाई, वहाँ मिनिमम, यस सर, हमें लगता एक है कि मिनट, minimum- मेरे हिसाब हमें से- लगता है कि मेरे मिनिमम हिसाब देना से- चाहिए, हाँ, मिनिमम देना ठीक है, चाहिए बोलो भाई। तो गर्ल्स आपने- मैरिज के लिए और मेन ड्रिंक्स अलाउड के लिए, और हाँ, बाकी इन दोनों जो को दो कम दो। लिटरेसी रेट और सोशल इकोनॉमिक अगर हम मेजर इन्वॉल्व होते हैं तो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हमारा वही दोनों से। हाँ, यहाँ और पे आप लोग awareness देखेंगे कि program चलाना हमने literacy जो में चारों how much we should प्रॉब्लम do? बातें की है उसमें कहीं ना कहीं पर लिटरेसी का कहीं ना कहीं पर जिक्र हर पॉइंट में आया है। तो अगर Right. हम लोग लिटरेसी को मेन इंपॉर्टेंस में और मेन फोकस करके पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाकी प्रॉब्लम हम लोग को कम एलोकेशन करना पड़ेगा। अच्छा, और फ्रेंड, स्किल अच्छा सेंटर की रहेगा। बात करें, अगर हम लिटरेसी में स्किल सेंटर की बात करते हैं तो उससे हमारे 30% इकोनॉमिकल भी दे दें। बूस्ट होगे, तो हमें अपना हमारा लिटरेसी जो पे आई बजट थिंक है 50% से ज्यादा लिटरेसी भी स्पेंड करना चाहिए। 30% हमें इकोनॉमिकल के लिए स्पेंड करना चाहिए और 15% के बाकी दोनों प्रॉब्लम के लिए हमें स्पेंड करना चाहिए, हाँ, क्योंकि तो उसका कुल- थोड़ा हाँ। काम ही बचा है। यहाँ तो और अगर आप सोशल percentage- डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो वाइड एरिया कवर करना है हमें। Yes, और ये भी I तो think देखिए हमें आप एक ये भी मिनट, देखिए ना कि मेरी बात कितने Can लोग we have कौन से 50% सबसे only ज्यादा first one? इफेक्टेड हैं, कि कितने हाँ, तो हम परसेंट लोग लोग कौन finalize से नहीं- प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, कि अल्कोहलिक प्रॉब्लम से सबसे कम लोग 50% इफेक्टेड is होंगे, okay. तो फिर उसको Yes, सबसे yes. कम हाँ, इंपॉर्टेंस सबसे दे कम सकते रखेंगे, हैं। हम लोग इसको sure. फाइनलाइज करते हैं ना, इसको फाइनलाइज करते हैं सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड को I 40 think या 40 50% के 40% आसपास। both. सोशल हाँ, सोशल 40% What about the first one? के लिए हम 40% बजट हाँ। एलोकेट करते हैं, 30% हम लिटरेसी के लिए एलोकेट करते हैं, देन 15% हम 20% हम गर्ल्स के लिए एलोकेट करते हैं अर्ली मैरिज, एंड 10% हम अल्कोहल कंजम्पशन के लिए एलोकेट कर सकते हैं। हाँ, But I ठीक think है, the first ठीक है। priority will have the major contribution. Is it? Yeah. हाँ, तो friends, I think सोशल literacy इकोनॉमिक is के the लिए major 40% दे रहे हैं ना। contribution. हेलो फ्रेंड, हमारे पास परसेंटेज में आ गए हैं, हम हमारे पास फिक्स अमाउंट है 25 लाख, तो हम रुपए में भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हम हाँ, तो कर लो। लिटरेसी को 13 लाख दे दे, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम 7.5 या 6 के अराउंड रख देते हैं, और बाकी दोनों प्रॉब्लम के लिए 3 लाख रख देते हैं। मेजोरिटी पोर्शन हमारा Can someone 13 please लाख repeat? 13। एक मिनट मैं बता देता The हूँ। लो literacy one is the में major 30% problem, है। right? So we can हाँ। have the how much Brother, is for your the voice first is- one? Literacy. Literacy rate Literacy of chunk of is the 30%, problem. which is approximately 7.5 lakh, and social economic backward has a chunk of 40%, which is approx 10 lakh, and about early girl marriage is 20%, which is 50, which is approx 5 lakhs, 5 and lakhs. 5 lakh, and 10% of reduction of alcohol, that is 2.5 2.5 lakhs. lakhs. 2.5 Yeah, lakhs, basically. Okay, I think we can all So, agree to that. We Yeah, can we all all agree. Can we लेट्स can we have अगर आपको more कोई point allocation करना हो on the literacy, like 40 or 30? Can we exchange that? Because I No, think I literacy is the think major cost. I think socio-economic backward will consume the more amount. yes, yes, That is yes. why I think सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम more ज्यादा area अमाउंट to यूज cover, I करेगा। And economically uplifting them will also solve the illiteracy problem and vice versa. So, So in we इन should केस terms work of हमें the on first छोटी priority, right? फैक्ट्रीज लगानी होंगी, इन केस अगर हमें छोटी फैक्ट्रीज लगानी होंगी, इन केस हमें अगर कोई रोड बनानी हाँ। है, इन केस अगर हमें उनको कोई इकोनॉमिक हेल्प करनी है, तो उस केस में हमें ज्यादा फंड देना पड़ेगा। लो लिटरेसी रेट हम Hello? 30% Okay, I agree with Hello? that. Ready for हाँ, conclusion? तो इस agree। Hello, I think we should reconsider on the point of fund location on the girls' child marriage. It is if we see from all the point, it is basically the violation of a basic human and constitutional right. Ask you, where you spend the money on the girls' child marriage? Where do you spend the money? They are all connected.
Yeah, also the percentage of girls is very less, so that you need to be less amount of money on that. Yes, No, they're all because they connected. have the We can see limited that the area, first we and can second will invest there. solve na. most of the problem of the third one. Most of the problem can be solved by और जो educating the पहले girls जो only. पहले दूसरे की बात है ना, मेजॉरिटी ऑफ Awareness हम प्रॉब्लम एजुकेशन के लिए ज्यादा इसलिए हाँ। स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि बाकी के Yes. प्रॉब्लम भी उससे सॉल्व हो रहे हैं, Yes, yes. इसलिए हम बाकी का प्रॉब्लम को थोड़ा कम अमाउंट दे रहे हैं। तो इसी पे फाइनलाइज करते हैं, है ना? Yes. हमारा हाँ, तो finalize यही हमारा बता दो, कंक्लूजन we हुआ। should conclude now. ठीक है, फाइनलाइज अमाउंट बता दो। Final. हाँ, तो Finalize on 7.5 lakhs. सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड पे 10 लाख, 10 लिटरेसी पे 7.5 लाख एंड Yes. अर्ली गर्ल मैरिज पे 5 lakh. लाख एंड रिडक्शन ऑफ अल्कोहल is 2.5 lakh, 2.5 lakh. है ना? And total sum of But the major 25 lakh. budget, 25 lakhs. major budget doesn't mean first priority, right? Right. No, I हमें don't think literacy that पे 10 लाख that डालना requires चाहिए। large amount because we have to cater that. But to cater the problem, the हाँ। money required, I don't think that too much is required. Yeah, Because for the वो थोड़ा सा education फर्क है। covers the more और ये area कोई and जरूरी more तो नहीं है investment कि जो नंबर requires 1 the पे रखे हैं उसी के लिए government. ज्यादा पैसा दें, है Yes, ना? yes. क्योंकि हाँ, वो ये भी पैसा जरूरी तो कम नहीं है। रिक्वायर्ड कर रहा है Solve ना। करेंगे, लेकिन जरूरी को सबसे ज्यादा पैसा में जरूरत पड़ेगी। हाँ, हमें तो सॉल्व पे जाना है। हाँ, तो एफर्ट ज्यादा उसमें include कर- लगेंगे पर अमाउंट कम लगेगा हाँ। उसमें। Okay. हम सोशल डेवलपमेंट सेंटर की बात जो कर रहे थे जिसमें अलग अलग हम सिंग डेयरी प्रोडक्ट के I think कोर्सेज we रखे, should हम उसे conclude सोशल now. वाले I think we should conclude I right think now. we can go on. We should go for Yes, We have conclude. already great discussion. I think we should go for conclusion now. Okay. Please. Yeah. Everything is decided. Good evening, everyone. I take the opportunity to conclude. We had a fruitful discussion. We were able to reach the consensus. We discussed that first of all, the first step that we should do is the survey, the local survey, which will help us to find the deep root cause of the problems. And after consensus, we came to the conclusion that the first priority is given to the low literacy, because we decided that this is somehow connected and interlinked to all the other 3 problems. So for tackling this, we allocated 30% budget, and we decided that we would have open schools, which would reduce the cost for the infrastructure, and we ourselves when we get time would go to teach them, and also we can have night schools for the people who are already employed, and we can have skill development centers as well as the part of the literacy for the people who are like somehow older in age. The second priority was given to socio-economic upliftment, which was having a 40% budget allocation. And we decided that we would have skill development centers. We would distribute sewing machines to the girls, the ladies, and also somehow get men involved to, like, for example, use their agricultural waste to produce biogas plants, to set up biogas plants. And the third priority was given to the girl early marriage, having 20% budget allocation. And we discussed that the first and second issues, when we would tackle that would somehow solve major of the problem of the third one. And also we would spread awareness about the girls' child marriage, like legally and biologically issues that girls face. And we can also have skill development centers for them. And also if they would be employed, then somehow they won't be considered as a liability. So it would stop the issue somehow. The fourth and the last point was given to the men alcohol, having 10% budget allocation. The major root and cause of the unemployment, I think we decided that the major cause of the men alcohol was being unemployed, because somehow that would lead to being free and having distractions. So if they somehow were employed, they wouldn't fall into this, and they would be knowing the harms that it would face on their bodies. And also we decided that we would have counseling and rehabilitation centers for them. That's all. Yeah. Okay. So let me now give you the feedback for this discussion. See, I'll put you in 2-3 categories. One category is those students who can comfortably speak and they are participating also. They are looking active also in the participation. So among them are Ahmad Kidwai, Arpit, Sachin, Ramakant also. And please be visible. One more student was there. Be visible, like only from face I recognize. Yes, Anoop also. So Anoop, Sachin, Arpit, Himmat Kadwai, and Ramakant. You people are participating also and energetic also you are looking. Now second category is those students who can speak and who are speaking also, but when they are not speaking, they are going in the state of little inertia, like Shubham Saurav, Vatan, and Nikhil, and Yadovanshi also. Yadovanshi, I was not in position to see your face because it was closed, so I may be wrong in my judgment.
but you are like, when you are not speaking like Vatan, I know Vatan can speak, Shubham Saurav can speak, but when you are not speaking, you are sitting like, it is little inert, and you never know when you go to the state of inertia of rest and inertia of motion. There are two inertias. You need to be in inertia of motion. That means कुछ ना कुछ करते रहो, एक्टिव रहो वहां पे. अगर तुम कुछ नहीं करोगे, सुनने वाले मोड में आ गए, that you are listening now others, then you will look like inert. An observer observes that thing. Okay, no, he is not participating. He is not saying yes, no, nothing. Neutral. You cannot afford to be neutral. या तो yes बोलो, no बोलो, agree करो, disagree करो, कुछ ना कुछ करो. तो वो 15-20 मिनट you need to be active. So in this particular task, these guys which I mentioned, Hamad, Arpit, Ramakant, Sachin and Anup, they were looking like active. कि नहीं, बात करनी है, सुनना है, वो है. लेकिन बाकी जो थे वो थोड़े से इनएक्टिव थे, और जिनका वीडियो बंद है उनका मैं फीडबैक बहुत नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग व्हेन दे आर क्लोज्ड their video, because they may be very active, they may not be active, so I cannot tell that much. Though Ashutosh, Yadvanshi and Sravya have spoken, but I cannot tell overall how they behaved in this entire. बाकी content wise, you people are giving good points now. बस ये है कि आप points को साथ में keep putting all the points together so that you reach the solution, because eventually he is asking you solution. Sometimes what happens during our process, we keep on giving so many points, keep on deviating, that we go far away from the topic. Don't go far away from the topic, just keep around the topic, so that even if a conclusion is to be given, we give the conclusion in a proper way. That is how it has to be, right? So this is what this topic was. The rest introduction part mein abhi bhi majority of you are like getting confused whether we should start telling about the things or we should only introduce the topic to the group. So in the introduction, typically I don't think solutions should come. So you should not start telling, okay, out of 25 lakh, let's give 5-10 lakh to this, 5 lakh 10 to this. So don't talk in terms of absolute values. Talk in terms of percentage first. And percentage can always be converted. 25 lakh you have, 50% you are giving for this, 25% you are giving for this, 5% you are giving for this. That's okay. And there's no right or wrong answer. You can think in many ways. That is how it can be. And also understand that in HPCL, the people who are taking interview are also the people who are considering your GT. So they attentively listen to you. And then they ask you that in the interview, if you go to the interview, they will ask you that in the task you were saying about this, why you were saying about this. That kind of things will also come up. This is how you are to behave. The rest, it's all about practice. More you practice, more you will become expert. And all these tasks are being uploaded on the YouTube channel also, and panel also, they are being kept. So you need to be very, very, you need to do self-analysis also. Because all the students who are going to HPCL, they're participating with you. All of you are going for HPCL. You know your competitors. Ask yourself a simple question. Are you better than others? If the answer is no, then how you think you will get selected? And if answer is no, ask yourself what you can do. One, you should ask, am I talking better than this fellow? Am I talking better than this fellow? Or he is talking better than me? If he is talking better than you, तो भाई तुम्हें क्यों लेगा वो? उसी को लेगा. So that means now we are having the simulated, this group task here with the same students who are going there. So your competitors are also participating along with you. That is a point. So ask yourself, do self-analysis. So where you can create the difference, how you can create the difference. Believe me, your own analysis will be the best, because you will be seeing this very carefully. The rest, I mean, third person reference from my side, that is what I have told you. And what are required, that also I have told you, this is something which is required. So anything you want to ask for that? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जीटी में जैसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ एंड समवन इज मतलब कंटिन्यूअसली वो बोलते ही जा रहा है एंड मैं पोलाइटली अगर पूछ भी रहा हूँ तो वो रुक ही नहीं रहा है, तो वैसे केस में फिर मैं क्या करूंगा? देखिए क्या होता है, आपको उसको रोकने का एक तरीका है बहुत आसान. आप बोल सकते हैं कि रमाकांत, इफ यू अलाउ मी, कैन आई गिव माई पॉइंट. ये चीज आप बड़े स्ट्रेट बोलना, सो दैट ऑब्जर्वर के भी काम में जाए. क्योंकि रमाकांत, यू हैव गिवन योर पॉइंट, नाउ इफ यू अलाउ मी, I want to put forth my point.
और सर अगर वो फिर भी ना रुके तो उसके नंबर कटते हैं, तुम्हारे बढ़ते हैं। जैसे आपने कंक्लूजन करना स्टार्ट किया और किसी ने कट कर दिया आपको, तो वो बाहर हो जाता है। इसीलिए तो और बहुत सर बच्चे ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अगर मैंने उससे बोला कि इफ यू अलाउ, तो और अगर उसने नहीं किया तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा बोलते रहेगा, कभी जब रुकेगा तो तुम दोबारा एंटर करो। बट ये उसकी बात है कि अगर आपको किसी को रोकना है तो किस तरीके से रोकना है, किसी को इंटरप्ट करना है तो किस तरीके से इंटरप्ट करना है। इंटरप्ट करने का भी तरीका होता है ग्रुप टास्क में, ऐसे सडनली इंटरप्ट नहीं कर सकते आप। उसका तरीका होता है कि आपने उसने बात बोली, आपने उसकी बात को ही आगे लेके चले, या उसको आपने सपोर्ट किया या आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, ये बोल के कि ओके शुभम, आई थिंक योर पॉइंट इज वैलिड बट आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन। शुभम, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? Yes, sir. Shubham, do you give me chance to put my point, because that may be very relevant. Shubham, your point is valid, but I have some objection to that. तो ऐसे बहुत से तरीके हैं आप बोल सकते हैं। थैंक यू सर। यस सर, आप कुछ अभी बता रहे थे कि हेलो सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। Yes, go ahead. सर जैसे कि सर इस जीडी में सर मेरे ज्यादातर पॉइंट्स वो सर से ग्रुप एग्री नहीं कर रहा था, तो सर उस केस में सर मुझे सर ग्रुप के साथ एग्री होना चाहिए। और सर तो सर अगर मेरे ज्यादा डिफर कर रहे हैं ग्रुप से पॉइंट, जो कि सर कुछ वैलिड भी हैं, तो सर उस केस में क्या करें? देखिए, आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली यू शुड मर्ज विद द ग्रुप। यस सर, यस। You can give your points, but then gradually you people should merge your differences and come to the consensus based solution gradually. Difference तो आएगा, somebody will say something, somebody will say some another thing, and difference आना भी चाहिए। अगर difference नहीं है तो discussion हुआ भी नहीं। Difference has to be there, but then you have to resolve that difference. Sometimes you are to yield, sometimes somebody else is to yield, but it should look like that you are a team member, you are working in a team. It should never be like team एक तरफ आप एक तरफ। वो जीडी में हेल्प करता है, ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करता है, वो ग्रुप टास्क में हेल्प नहीं करता। ओके सर, थैंक यू सर। एनी अदर पॉइंट? चलो देन आई थिंक हाँ सर मेरा एक जीटी का वाला क्वेश्चन था। मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करना था सर। मेरा अभी अप्रेंटिसशिप स्टार्ट हुए दूसरे स्टेट की डिपार्टमेंट में, तो एनओसी मुझे सबमिट करना होता है इंटरव्यू के लिए? कई बार मांगते हैं वो, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो मांगते हैं आपसे एनओसी। सर अभी 3-4 डेज हुए, मेरा ऑर्डर अभी आया है, तो अभी स्टार्ट ही हुई है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, गवर्नमेंट है, जल बोर्ड है गुजरात स्टेट का। एंड यू डिस्कस विद मी इन द एचआर। ओके सर, ठीक है सर एक क्वेश्चन था सर। ये जो हॉबी होता है सर, हेलो? हाँ जी। हाँ सर, जो हॉबी होता है उसमें मैं जॉगिंग या रनिंग डाल सकता हूँ? क्योंकि जैसे मैं दिल्ली पुलिस के लिए रनिंग कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो वो हो सकता है उसमें? हाँ, यस, जॉगिंग होता है। हाँ, तो सर इससे काउंटर क्वेश्चन नहीं हो सकता? मतलब काउंटर क्वेश्चन तो कर सकते हैं। क्वेश्चन तो बनेंगे ही, हम क्वेश्चन से थोड़ी डरना है हमें। क्वेश्चन तो हर तरह से बन सकता है। तो सर तो वो ये भी तो पूछ सकते हैं कि फिर जब आपका मतलब दिल्ली पुलिस में हो रहा है तो फिर आप यहाँ क्यों कर रहे हो? आप ये नहीं बोलोगे ना दिल्ली पुलिस में हो रहा है, आप तो बोल रहे हो जॉगिंग मेरी हॉबी है। इससे ये कहाँ पता लग रहा है आपका दिल्ली पुलिस में हो रहा है? तो मतलब ये जाहिर ही नहीं होने देना वहां पे? मेरे को नहीं लगता बताना चाहिए आपको कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। अगर हो गया है बात अलग है, अब जहाँ हो रहा है वो बताने की क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है सर, राइट। सर चलो जो यू कैन डिस्कस विद मी इन एचआर। सर बस लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, कि जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में स्ट्रेंथ वीकनेस भरनी है, तो सर मैंने 3 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस मतलब प्रिपेयर करी है, तो मतलब इसके अलावा और ज्यादा भरनी चाहिए या इतना सफिशिएंट है? नहीं, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है उतना ही भरो। ओके सर। 3 और 2 है वो ठीक है, कोई इश्यू नहीं इसमें। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।